हाँ, जय सच्चिदानंद। हरे रुचि दादाजी, हरे गुरुजी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂંટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હરિયુજી પ્યારાજી, हरे होजी प्याराजी, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. सहारा विना बीज उगતું નથી. હરિયુજી દાદાજી, हरे होजी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂંટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કો સંગે જ દુઃખ, જગત કો સંગે જ દુઃખ, કેવલ સત્સંગે જ સુખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનો હસતો મુખ, દાદાજીનો હસતો મુખ, શ્રવણે દર્શન થાતા સુખ, શ્રવણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજી, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠારતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠારતું નથી. હરિયુજી દાદાજી, હરિયુજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ઘૂંટતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયા ભરમાં લોકો લાગે, દુનિયા ભરમાં લાગે, કે સત્સંગ વિના સૂનું લાગે, સત્સંગ વિના લાગે. બિરવો દિવસ રાત જાગે, બિરવો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ વાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રૂપો અતિક્રમનાજી, રૂપો અતિક્રમનાજી, આત્મ રમના વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. હરિયુજી દાદાજી, હરિયુજી દાદાજી, હરિયુજી પ્યારાજી, હરિયુજી પ્યારાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નવ કલમ બોલીએ. સચ્ચિદાનંદ.
हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Well, હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરने की परम शक्ति આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા ન બોલી જાય ન બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા બોલે તો મને મધુર જેવી ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અવર્ણ નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધિત કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં દુઃખપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Okay. મંત્ર બોલાવીએ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વાયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો વસાયાણમ નમો લોય સવસાહુણમ નમો લોવે સવસાહુણમ એસો પંચ નમોકારો એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસનો સવ પાવપનાસનમ મંગલાણમ ચ સંવેસિં મંગલાનં ચ સૌવેસિં પડવમ હવે મંગલમ પરમં હવે મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. डेली प्रेयर विनय याद है कि भूल गया सब? याद है. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग
केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में मॉरल प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति द्वितीय मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जो मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। इसलिए आप मुझे परम शक्ति दें। दक्ष हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मैं आपके बच्चे हमें आपके आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दरिया सेपरेशन प्रेयर आता है, हाँ। बोलिए। हे दादा भगवान, आप अलग हो, धैर्य अलग है। हे दादा भगवान, आप दक्ष हेल्प करो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। वेरी गुड। गुजराती श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે। जय सच्चिदानंद। ओके, वेलकम एवरीबॉडी। गलत है ये, क्या समझाओ? आज आने का दिल हुआ था कि अभी छुट्टी मांगता है श्रेया? इस सत्संग में फिर से आना था, क्योंकि क्यों? फिर 9 बजे कुछ करने के लिए कुछ विनय छोटी को तो नहीं आने का है, आप दोनों को। ऋषि क्या बोलते हैं मालूम नहीं पड़ता है। ऋषि जोर से बोलो। हाँ, मुझे आज सत्संग में आने का मन था, इसलिए आई। मोनिका मुझे आज सत्संग में आने का मन था, और मेरा जो 9 बजे का टाइम रहता है तो उस समय फ्री जाता है। कभी कुछ ही मम्मी को मदद होती है और कभी कभी वेस्ट, इसलिए। आपके लिए सत्संग इम्पोर्टेंट लगता है। दक्ष जय सच्चिदानंद। मैं इतने दिन से मेरे पास टाइम नहीं रहता था, क्योंकि मैं बाहर गया था। तो नहीं, मैंने अच्छी बात नहीं। वो बाहर नवरात्रि में आप बाहर काम गए थे? क्या लेना देना, कितने फीस बचे, फीस की साइज ही अलग है। के दरियाई जय सच्चिदानंद। मेरा ना मन था आने को। अभी चालू रखने का है कि बंद कर देंगे हम? चालू रखना है। ओके करो। मन था आने का, और मैं 9 बजे फ्री हो जाती हूँ तो मेरे को कुछ करने का मिलता।
और ये स्ट्रेंजर्स किधर से आए हैं? साक्षीबा, हे सचिदानंद, मेरे एग्जाम चल रही थी और नवरात्रि के टाइम में मेरे मामा के घर गई थी सूरत। नहीं किया था। अच्छा, तो किसी ने मिस नहीं किया सत्संग? हाँ, सत्संग मिस नहीं किया? मिस किया था। वो कोई बोलते नहीं है कि क्यों मिस किया था? दक्ष, क्यों मैं मिस किया था आपने सत्संग? क्योंकि वहां पे मेरे पास कुछ भी काम नहीं रहता था। वेरी गुड, दैट्स अ गुड वन। साक्षीबा क्या बोलते हैं? और दादा, जब मैं सत्संग नहीं करता था तो मेरा कभी कभार बहुत सारे काम परफेक्टली नहीं कर पाता था। ओके, वेरी गुड। साक्षीबा आपको मिस करते थे? मैं सत्संग इसलिए मिस कर रही थी क्योंकि मैं कामरेज मंदिर गई थी, दादा भगवान के मंदिर कामरेज है वहां पर, और वहाँ पे 8:30 को आरती होती थी तो 11-12 बजे तक सब गरबा खेलते थे, इसीलिए। ओवरऑल हाँ मैंने मिस करे, मैं करता मैंने तो मोर देन आप पहले बोला। ओके, वेरी गुड। अभी किसी को याद है कि वो ये 10 दिन 11-12 दिन में क्या ऑब्जर्वेशन करने का था? दरिया ना बोलते हैं। खुशी को याद है, मोनिका को याद है, ओरल ओरल को याद नहीं है, दक्ष को याद नहीं है, श्रेया को नहीं है। श्रेया बहुत पढ़ाई करती है, सब भूल जाती है। ओके, खुशी बोलिए क्या था, जोर से बोलो। इस नवरात्रि में हमारा होमवर्क मम्मी को ऑब्जर्व करने का था, वो क्या काम करती है। और आपने हम तीनों को एक होमवर्क दिया था कि शाम को मम्मी जब काम करती है तो उनका हेल्प करने का, झाड़ू मारने का, वो ऑब्जर्व करना था। और हमने नवरात्रि में माता जी की आशीर्वाद में क्या मांगा था। वेरी गुड, तो बोलो। और दूसरा एक भूल गया, सिस्टर को भी ऑब्जर्व करने का क्या? श्रेया बोलो। मम्मी को अप्रिशिएट करना। हाँ, वो अप्रिशिएट करने को और सिस्टर्स को अप्रिशिएट करने का था। खुशी, आपकी सिस्टर्स अप्रिशिएट नहीं करते ना? मोनिका आपको अप्रिशिएट करती है? हमारा दिन ये माता जी का इतना अच्छा प्रोग्राम था सत्संग में, और करता में, और अप्रिशिएट नहीं किया एक दूसरे। ओके, चलो बोलो, आपको कुछ क्या रिपोर्ट बोलो। मम्मी को अप्रिशिएट किया, झाड़ू मारा, बोलो जल्दी जल्दी। खुशी क्या मम्बल करती है, हमको सुनाओ। नो मम्बलिंग, यशोदा दादा बोलते नो मम्बलिंग हियर, ओपन। इस नवरात्रि में मैंने मम्मी की 2 बार ही झाड़ू मारने में मदद की, और वो सुबह से क्या काम करती है उसको ऑब्जर्व किया। और माता जी के साथ मैंने शक्ति भी मांगी थी 9 दिन में। क्या शक्ति मांगी थी? स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करूं और किसी के साथ भी क्लेश ना हो। मम्मी फैमिली की हर बात मानो। फैमिली के कुछ नहीं माना? क्या? फैमिली के लिए कुछ नहीं माना, क्या वो अप्रिशिएट कर रहा हो सबको? ओके, मोनिका। जय सच्चिदानंद। मैंने इस हॉलीडेज में मैंने मम्मी को अप्रिशिएट सिर्फ 2 बार की थी, जब मम्मी ने मेरे लिए इतना दिन सांबर में और 2, मम्मी ने 2 ही काम किया 10-12 दिन में? नहीं, उन्होंने सारा दिन काम किया, बट मैंने अप्रिशिएट सिर्फ 2 बार ही किया था। और सब आपको केशव दादा के घर पे पहुंच और मैंने मम्मी की
झाड़ू मारने में सिर्फ 2 दिन मदद की थी। और नवरात्रि में मैंने ये शक्ति मांगी कि मुझे मैथ्स अच्छा करना है और उसमें मुझे फुल मार्क लाना है, उसमें मुझे एफर्ट्स डालनी है और साथ ही में अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। और अपने हेल्थ के लिए भी किया था और किसी के साथ और खाने के साथ कभी अभाव ना हो ऐसी प्रार्थना क्या की हुआ थी। 10 दिन में खाने का क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी गए 2 दिन मैंने खाने की कल खाने की चिक हुई थी उससे किट किया कि नहीं किया 2 दिन? किया था। तो भी खाना बंद कर दो ना, तो कितनी तो शांति होगा मगज में। हाँ, सॉल्यूशन है ना, थिंक अबाउट इट। श्रेया, हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने मम्मी को 2 बार ही अप्रिशिएट किया था और माता जी से मैंने ये पूछा था कि मैं तीनों गोल में सिंसियर हूँ और मेरे स्टडीज का सब अच्छी तरह प्लान करो। लक्ष्य, सच्चिदानंद, मैंने इन दिनों में मैंने मम्मी को अप्रिशिएट नहीं करा था और मैंने माता जी से ये विश मैंने ये बोला था कि मैं इस बार फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आऊं। पर्याय, दादा मैंने भी मम्मी को ऑब्जर्व किया कि वो ना हर एक चीज करी थी जिससे मैं इन्फेक्शन से ठीक हो जाऊं। और वो अपना ना घर पे टाइम कम दे रही थी, तो फिर भी मैंने उन्हें अप्रिशिएट नहीं करा क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत थी और मैंने भगवान से विश मांगी कि मैं ठीक हो जाऊं तो मम्मी को आगे दिक्कत नहीं पड़े। ओके। तो मम्मी तो कुछ काम नहीं करती है ना, आ, मम्मी आप ही काम करती है। करते हैं ना। कोई बोला नहीं कि मम्मी कितना हार्ड वर्क करते, तो रहो। हाँ, मैंने मम्मी को 3 बार अप्रिशिएट किया था और मैंने माता जी से ये बोला कि वे फाइनल एग्जाम अच्छा हो। ओके ओके, यशोदा आपने सब सुना। एप्रिशिएशन तो किसी को अच्छा नहीं लगता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो एप्रिसिएशन होती है। अगर हम आपको एप्रिशिएट नहीं करें तो आपको कैसा लगता है? हम आखा दिन आपको बोले आप तो ये भी नहीं करते हो, आप तो वो भी नहीं करते हो, आप तो स्टडी में भी बरोबर नहीं करते हो, आप तो मम्मी को हेल्प भी नहीं कराते हो, आप तो ये भी नहीं करते हो। हम आखा दिन आपको वैसा एप्रिशिएट नहीं करें तो आपको अच्छा लगेगा? और अगर हम आपको अप्रिशिएट करते तो आपको कितना अच्छा लगता है। ओ यू हैव डन वंडरफुल जॉब, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आप तो बहुत सिंसियर है, आप तो स्टडी में भी बहुत आगे प्रगति करते हैं, आपका व्यवहार भी अपने फैमिली के साथ सबके साथ बहुत अच्छा है, आप सबको बहुत रिस्पेक्ट भी देते हो, आप सबके साथ अच्छी तरह से बात करते हो, आप सबको हेल्प करते हो। तो हम पूरा दिन आपको अप्रिशिएट करें तो आपको अच्छा लगेगा ना? हाँ। तो क्या होता है, अगर आप मम्मी को पापा को जो भी आपके घर में आसपास में रहते हैं अगर आप उनको अप्रिशिएट करो तो उनकी थकान उतर जाती है। हम बचपन में जैसे दादाजी ने हमको सिखाया कि आप अगर घर से आते हो इधर सत्संग में तो मम्मी पापा को खुश करके आते हो कि नहीं आते हो? तो हमें बोला दादा ऐसा तो हम विचार भी नहीं करते, तो मम्मी पापा खुश है कि नहीं है, तो हम तो ऐसे ही चले आते हैं। तो दादा ने बहुत कड़क भाषा में बोला कि भाई जब तक तुम्हारे मम्मी पापा आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आप मम्मी पापा आपको परमिशन नहीं देते, तब तक तो आप इधर आना भी नहीं। उनको हेल्प करने का, उनके हर एक बात में उनको मदद रूप बनने का, हर काम में उनका हाथ बढ़ाने का, और जब आपको वो परमिशन दे तभी इधर आने का। तो दादा ने क्यों ऐसा सोचा होगा कि भाई ये बच्चे सब लोग इधर आते हैं तो वो घर में सबको सिंसियरिटी से ऑनेस्टी से सबको सबका काम करके आते हैं कि ऐसे ही चले आते?
दादा ने जो हमारे मदर फादर के लिए जो विजन दिया था, वो इतना अच्छा विजन दिया कि पूरी लाइफ हमको बहुत हेल्पफुल हुआ। और उसके बाद हम मम्मी को इतना खुश रखते थे, इतना खुश रखते थे कि मम्मी और हमारे पापा तो दादा भगवान के सामने आके बहुत प्रशंसा करते थे। तो दादा भगवान खुश होते थे कि अरे वाह, अब इनके जिनके बच्चों के माँ बाप को आके दादा भगवान के सामने प्रशंसा करे तो वो बच्चे पास हो गए। नहीं तो नॉर्मली मम्मी पापा को क्या होता है, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, कुछ कहना नहीं मानते, हमेशा अपनी करते, हर एक बात में हमको तकलीफ देते। नॉर्मली सब ऐसी कंप्लेन जाती थी दादा के पास। पर दादाजी ने जब हम सबको समझाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे होना चाहिए, हाउ वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, और ऐसा जब विजन दिया, तब से सबके पेरेंट्स आके दादा भगवान के पास प्रशंसा करते थे। तभी दादा बोलते थे कि अभी ये सब लोग बच्चे पास हो गए। जिनके भी मदर फादर दादा भगवान के पास आके प्रशंसा करे तो तभी हम पास होते थे, नहीं तो दादा भगवान हमको पास ही नहीं करते थे। तो ये सब चीजें क्यों माने इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जहाँ से हमारी ट्रेनिंग होती है, जहाँ से हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जब से हम पहला कदम हम घर में उठाते हैं, तो वहां से हमारे मदर और फादर हमको साथ देते हैं, हर कदम में हमको साथ देते हैं, हर कदम उठाने में हमको साथ देते हैं। हम बचपन में चलते चलते गिर जाते तो फिर से हमको उठाते हैं, और 100 बार गिरे होंगे तो 100 बार उठाते हैं, तो भी थकते नहीं है। पर हम तो 2 बार खाली सेवा कर डाले तो फिर उसमें थक जाते हैं। अगर 9 दिन की छुट्टी थी तो हमको तो कितनी मम्मी की सेवा करनी चाहिए हमको, और पढ़ाई भी थोड़ा हॉल्ट पे था, तो उनको उनको वो दिन रात इतनी मेहनत करते, दिन रात काम करते। तो हमारा हम पूरा दिन तो पढ़ते नहीं है, जितना भी हमारा प्रोग्राम होता है उसमें से 24 आवर्स ही हम कुछ अब काम नहीं करते हैं। 24 आवर्स ही हम अपने लिए स्टडी नहीं करते, कुछ आवर्स करते, कुछ आवर्स करते। ऐसा करते करते लाइफ में बैलेंस होके कुछ आवर्स ऐसे निकालने चाहिए ताकि हमारे को मम्मी को हम बहुत ही हेल्पफुल हो सके, उनको उनको थकान में से मुक्त कर सके। उनके अंदर से ऐसे दुआ निकलनी चाहिए कि वाह बेटा, आज आपने क्या काम किया है, आज आपने मेरे को बहुत हेल्प किया, आज आपकी वजह से मैं थोड़ा आराम कर सकी, वाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो जब ऐसा उनके मुंह से अंदर से आवाज निकलती है ना, तो उनकी दुआएं हमको बहुत काम लगती है। हमारे हमारे जनरेशन्स में तो कितने ऐसे बच्चे हैं कि वो आज भी ऐसे बोलते कि अगर मैं इतना सक्सेसफुल हुआ ना, तो मेरी मदर की, मुझे मेरी पापा की और मेरी मदर की बहुत आशीर्वाद है, इतनी आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इस सीमा पे पहुंचा हूँ। कितने ऐसे बच्चे दादा के जो फॉलोअर्स थे और जो बड़े होके कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई अपने मुकाम पे चला गया, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। तो जो जो भी उन मुकाम पे पहुंचे ना, तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि हमारे पर मम्मी पापा की बहुत आशीर्वाद थी, हमने उनका इतनी सेवा की ना कि उनके अंदर से दुआएं निकलती थी। तो वो दुआ ने बहुत अच्छा काम किया। ये क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि मम्मी पापा की दुआएं कितनी कैसी काम लगती है, जबरदस्त काम लगती है। वो अपने बच्चों के लिए वैसे भी दिन रात दुआ मांगते हैं, पर अगर उनके बच्चे उनके कहने के हिसाब से चले, उनकी सेवा करे, उनके हर काम में हाथ बढ़ाए, तो उनके अंदर को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो मेरे को इन्होंने साथ तो दिया। हमारी तो ड्यूटी सुबह से लेके शुरू हो जाती है मम्मी पापा की, तो रात को जब तक सोते तब तक उनका पूरी गाड़ी चलती ही रहती है। और ऐसे टाइम में अगर हम उनको साथ दे, उनकी हेल्प करें, उनको अप्रिशिएट करें, तो उनको बहुत बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और उनकी दुआएं भी मिलती है। तो सब चीजें साथ मिला के हमारी प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है। तो जितना भी हो सके हमको लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, दादा भगवान फुल लाइफ सबको अप्रिशिएट करते थे। थोड़ा भी कुछ काम करके अच्छा लेके आते थे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उससे क्या होता था
कि उसमें से अंदर से शक्तियां डबल हो जाती है। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो हमारी तो शक्ति बढ़ती है, पर सामने वाले को भी बहुत बड़ी शक्तियां बढ़ती है। तो हमको ये हमेशा रूटीन में ये अप्रिशिएट करना तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सही है। हाँ। ओके, तो आपने क्विकली बोलो, बाद में दीपिका दादा को बोलेगा आपने कितना टाइम वेस्ट किया कि यूजफुल किया इस 10 दिन में। कि मैंने टाइम वेस्ट बहुत किया था, बहुत किया। मोनिका, मैंने हॉलीडेज में टाइम यूज किया था और 1 आवर हर दिन वेस्ट तो हुआ। रिया, रिया, हाँ, ये छुट्टी में मेरा 1 घंटा पूरे दिन में वेस्ट होता था। दक्ष, ये सच्चिदानंद मेरा डेली ½ एन आवर डेली वेस्ट होता था। ओरल, ये सब म्यूट क्यों हो जाते हैं? मेरा टाइम वेस्ट, मैंने यूज किया था टाइम का 2 घंटे वेस्ट हो जाता था। ओके, दीपक दादा। ये लोग जो मिलिट्री में होते हैं ना, उनको लॉग बुक मेंटेन करने की होती है। व्हाट इज द लॉग बुक, डू यू नो? ये केशव आनंद जी है ना, केशव दादा, वो अपने बिजनेस पर लॉग बुक रखते हैं। शिफ्ट बदलती है ना, तो आगे के शिफ्ट वाले ना कि क्या कंडीशन थी, वो लॉग करते हैं। लॉग करने का यानी नोट करते हैं। ये सारा वॉर टाइम का जो हमें क्या बोले इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो सभी शिप में जो कैप्टन होते हैं ना, वो लॉग बुक मेंटेन करते हैं। सब सोल्जर्स भी अपना लॉग बुक रखते हैं। बोलो, ये 12 दिन में आप 1% ही इंफॉर्मेशन दे पाए, 99% तो क्या किया। से मैं हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अभी से ऐसी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप बड़े होंगे ना, तो इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको अपने पर क्या बोले, नाज होगा। फक्र बोलते हैं ना, नाज होता है, ये होता है। लेकिन आज आप जिस तरह से रहते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा तो चीट करते हैं ना। हाँ, खुशी तो बहुत नहीं करती है, खुशी तो चीट नहीं करते हैं ना। हाँ, करती हूँ। श्रिया भी नहीं करती है। दक्ष क्या बोलते, दक्ष क्या बोलते हो? चीट करता हूँ। दक्ष नहीं करती है। हेलो तोरल, आप करते हो चीट अपने आप को? धैर्य तो चले ही गया, वीडियो भी छोड़ के चले गया। हाँ। कभी कभी थोड़ा बहुत आपको अपने आप को चीट करते हो। हमें ये समझना जरूरी है कि हम अपने आप को चीट करते हैं। जो अपने आप को चीट करते हैं वो क्या काम करेंगे, आप सोचो। हमारा हमारा जो हमने जो प्रेयर बोलते हैं ना शुरुआत में, डेली प्रेयर में, सिंसेरिटी, मोरालिटी, ऑनेस्टी एंड प्योरिटी, तो आप सिर्फ उसके ऊपर गौर करना है
एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्व करना है कि हम कहाँ कहाँ कितनी गलतियां करते हैं। अभी डैडी मम्मी की जो बात आई, आप अप्रिशिएट नहीं कर पाए। पता है आप अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने मम्मी को ऑब्जर्व किया ही नहीं है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? क्लोज ऑब्जर्वेशन। क्लोज ऑब्जर्वेशन समझते हो आप? कि उन्होंने क्या किया वो आपको समझ में आता है, आपने देखा। सीइंग इज बिलीविंग बोलते, पता है? पता है? हाँ, हेलो, किसी की आवाज नहीं आती है। मेरी आवाज सुनाई देती है कि नहीं? सीइंग इज बिलीविंग बोलते ना। ऐसा है, हम जब आईने के पास जाते हैं ना, आईने के सामने, तो खुद के ऊपर नाज होना चाहिए, खुद के ऊपर फक्र महसूस करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा चीटिंग करेंगे तो आईने में देख के क्या आप खुद को क्या बोलेंगे? अप्रिशिएट कर पाएंगे? हाँ, फिर भी आप इतनी मजा करते रहते हैं, ऐसा सुना है। हाँ, बोलो ना, मजा करते हो कि नहीं करते हो? दादा पापा मम्मी सब करते हैं, पैसा देते हैं, हमको मजा क्यों नहीं करेंगे हम? पता नहीं है ये अपना जो पढ़ाई का काम है, जो आज, क्योंकि आज ऐसा है ना कि पहले के सब जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते थे ना, तो काम का बंटवारा हो जाता था। बच्चों का काम एक ही था, खेलो, खाओ, पढ़ो और सो जाओ। करेक्ट केशवानंद जी? परफेक्ट। बोलो, आप खेलते हो? नहीं मिलता है, आप खेलते भी नहीं है, आप खेलते नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, हाँ, नव कलम नहीं, आप सत्साधन नहीं अभी तो करते। अभी सत्साधन का तो कुछ स्कोर है क्या? नहीं फिर हमारा सुपर ब्रेन योगा, वो क्या चीज है मालूम नहीं, किसको मालूम है? हाँ, कौन करते हैं? सब छोड़ दिया दीपक दादा। अरे हाँ, मेरा तो स्टार्ट हो गया अभी सूर्य नमस्कार भी, पहले मैं नहीं कर पाता था। आई हैव स्टार्टेड नाउ। ओके, देखो अभी, चलो कल बताना व्हाट आर यू सीरियस अबाउट? ओके, ये जो बातें किया ना, तो अभी चेक व्हाट सीरियस दीपक दादा। ये जो सुपर ब्रेन योगा है ना, माय गुडनेस, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। वो पता नहीं कैसे हमारी पर्सनालिटी को चेंज करती है। नो वर्ड्स, सचमुच बताता हूँ। कौन नहीं करते हो आप? पूजा करो समटाइम्स। अभी डेयरी बेटे, आपको पता नहीं है सुपर ब्रेन योगा क्या है? ये पता है? नेचुरली यू विल स्टॉप चीटिंग योरसेल्फ। किसी को कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके अंदर ये सिंसियरिटी आ जाएगी, मोरालिटी आ जाएगी, ऑनेस्टी आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। इतना वंडरफुल है। अभी करोगे फिर से रिचार्ज, तो आपका वो सब डिस्चार्ज हो गया। श्रिया, करूंगी। हाँ देरी, आपको पता है ना क्या है सुपर ब्रेन योगा? चलो अभी कल करना। दीपक दादा, वी हैव टू टेक द टॉल टुमारो के क्या उन लोगों को सीरियस किया के कुछ। यस बट सी, इसीलिए है ना, आप लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं आती है, टेंशन। अगर आप अप टू डेट रहते हैं ना, ऐसे ही खुशी रहेगी आपको। खुशी नाम तो है, लेकिन खुश भी रहोगे आप। लेकिन हम गलतियां करते रहते हैं ना, डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी, इमोरालिटी, इम्प्योरिटी, ये सब अपने चेहरे पर आ जाता है। ख्याल में आया? तो ये अभी गोल रखो,
right? Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। प्लीज कल बताना कि क्या आपको सीरियसली क्या लेने का है। ओके, यू मस्ट टेक वन थिंग सीरियसली। जय सच्चिदानंद। और लॉगिंग का आप at the और end of the day या just spend 10 minutes नोट्स लिखो, नोट्स लिखो। 10 minutes, just write 10 points.